Welcome students. Today we will start the new topic reported speech or you can say narration. Narration means speech के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. Okay. So there are two types of speech. Speech दो तरह का होता है, direct speech and indirect speech. So what is direct speech? आज देखते हैं हम लोग. Okay. So let's start with a example. एक example के साथ हम लोग शुरू करते हैं. Let's see here this picture of a boy Ravi and he is telling I have done my homework. So the words told by Ravi के द्वारा बोला गया this word that I have done my homework. This is the in the form of a direct speech, or we can write the same thing as Ravi said I have done my homework. Now the same words which the Ravi said is told by the other person, means इस लड़की ने लड़की this girl is telling बता रही है रवि क्या कह रहा था. Okay, she is telling Ravi said that he had done his homework. Now the same words which the Ravi said is told by the other person, this girl. Okay, and this the word which are said by this girl, इस girl ने जिससे कहा ये आपको हो जाएगा indirect speech में. Okay, children समझ में आया? Means the person who told the direct quotes, direct words जो बोला गया वो आपको direct speech में आता है, and उसी बात को कोई दूसरा person अगर बोलेगा वो आपको आ गया indirect speech में. See the definition of direct speech. In direct speech, we report the words of a speaker by repeating the actual words, which are indicated with the help of inverted commas. Yes, हम लोग inverted देखिए फिर से example में कैसे inverted comma के अंदर में लिखा है I have done my homework, means Ravi said I have done my homework and this word said by Ravi is written within the inverted comma. Okay, but indirect speech में inverted comma हट गया है. किसी second person ने रवि के द्वारा बोला गया sentence को when she has told, we have removed the inverted comma using the conjunction that conjunction लगा करके inverted comma हटाया गया. Okay, so this direct speech, we report the words of a speaker by repeating the actual words which are indicated with the help of inverted commas. और भी example देखिए, राजा said I am going to school. Mother says I will make cake tomorrow. याद रखिएगा inverted comma के अंदर में जो भी quote होता है that comes in direct speech. Okay. Now the indirect speech. When we convey the speaker's thought without repeating the actual words, it is called reported speech or indirect speech or narration. Okay, reported speech किसे बोलते हैं? Indirect speech को ही हम लोग reported speech भी बोलते हैं, याद रखिएगा. और इसी को narration भी बोला जाता है. Narration means when we are narrating the same quote, same words of the first person. किसी आदमी के द्वारा बोले गए वर्ड्स को अगर कोई दूसरा आदमी उसी बात को बता रहा है वो हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, नाउ सी हियर, पहले हम लोग एग्जांपल में लिए थे दैट राजा सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, और इसका आप देखिए राजा सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल. मदर सेज दैट शी विल मेक केक द नेक्स्ट डे. और इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखिए इन्वर्टेड कॉमा हट गया है एंड एक कंजंक्शन दैट यूज हो गया है, एंड और भी बहुत सारा चेंजेस मिल रहा है आपको, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में आपका प्रेजेंट टेंस में था वो आपको इनडायरेक्ट में आके पास्ट टेंस में हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स अब हम लोगों को क्या क्या रिमेम्बर रखना है व्हेन वी आर कन्वर्टिंग द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट को जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, so what are the points we have to remember? First, अभी मैंने बताया था conjunction use होता है. Okay, a conjunction if required is used to join the reported speech with the rest of the sentences. Okay, reported speech के साथ speech को rest of the sentence के साथ जोड़ने के लिए we are using the conjunction
that. ओके अगर क्वेश्चन रहता है वहां हम लोग इफ और वेदर भी लगाते हैं, बट हियर इट्स अ सिंपल सेंटेंस, सो दैट लगेगा स्टेटमेंट में. हरीश said that he was down with fever. Okay, यहाँ पर that आपका हो गया conjunction. Tenses and personal pronouns I, you, we, her, she will change. Okay, कैसे change होगा? See here, Rohan said I have to go. मीन्स ये रोहन के द्वारा डायरेक्ट बोला गया वर्ड्स है आई हैव टू गो. नाउ द सेम थिंग आई हैव रिटन इन इनडायरेक्ट फॉर्म. इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे चेंज होगा, देखिए रोहन सेड दैट, दैट यहाँ आपको कंजंक्शन यूज हुआ है. ही हैड टू गो. ओके, आई देखिए चेंज होकर के ही बन गया और हैव आपका चेंज होके हैड में चला गया. इजंट इट, पास्ट फॉर्म में आ गया. हैव प्रेजेंट है, आपको इनडायरेक्ट में आ गया तो पास्ट हो गया, हैड हो गया. ओके, और टू गो आपको एज यूजुअल इन्वर्टेड कॉमा हट गया है. ओके, सो दिस आर द चेंजेस. और भी बहुत सारा चेंजेस है, वी विल सी आफ्टरवर्ड. सी चेंजेस इन टेंस. टेंस अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? द गर्ल सेज. देखिए आपको द गर्ल सेज क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब है. ओके, या तो फिर अगर आपको रहता द गर्ल सेड रहता तो सेड इज ऑल्सो रिपोर्टिंग वर्ब. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, okay, verb is in the present or future tense, the verb in reported speech is not changed. Okay, means indirect फॉर्म में जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तब आपका टेंस आपका चेंज नहीं होगा. ये आपको याद रखना है. ओके, फिर से मैं बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट फॉर्म में है या फ्यूचर फॉर्म में है, देन आपका इनडायरेक्ट, जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे उसमें आपका टेंस चेंज नहीं होगा, पास्ट टेंस में नहीं जाएगा. ओके, पहले मैंने बताया था कि पास्ट टेंस में चला जाएगा, बट कब नहीं जाएगा पास्ट टेंस में? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है. एग्जांपल देखिए, द गर्ल सेज है. ओके, सेड नहीं है. अगर सेड रहता तब आपका आगे सेंटेंस लास्ट में बनता. सी द गर्ल सेज आई एम ईटिंग केक. इनडायरेक्ट क्या बना? द गर्ल सेज दैट शी इज ईटिंग केक. ओके, इज है. अगर आपका सेड रहता वहां पर शुरू में रिपोर्टिंग वर्ब तो यहाँ पर शी वॉज ईटिंग हो जाता है, isn't it? लेकिन वहां पर सेज है, मीन्स प्रेजेंट फॉर्म में है, सो आपका रिपोर्टेड स्पीच बन जाएगा शी इज ईटिंग. नेक्स्ट देखिए, अवी विल से. देखिए फ्यूचर टेंस में आई हैव मेड हियर. We will say my parents have gone out. Now indirect में future का क्या बनेगा? We will say that his. Okay, my का देखिए his हो गया. ये भी ध्यान देना आपको, pronouns कैसे change होता है. my का change होकर के his हो गया. His parents have gone out. Yes, एक और चीज, have देखिए आपका डायरेक्ट में भी हैव है, इनडायरेक्ट स्पीच में भी हैव ही रहेगा. क्यों? क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है. ओके, रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज विल से. विल से क्या है? फ्यूचर टेंस में है, इसलिए आपका रिपोर्टेड स्पीच जो बन रहा है वहां पर हैव गॉन ही रह जाएगा. ओके, वो पास्ट में नहीं जाएगा. नाउ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज into indirect speech. अब हम लोग देखेंगे जब सेंटेंसेस बनाते हैं, वी आर गेटिंग दैट आई विल गो टू मार्केट टुमारो. सो टुमारो आपका जो वर्ड आया वो डायरेक्ट में रहेगा, तो इनडायरेक्ट में वो चेंज होकर के क्या वर्ड बनता है, isn't it? टाइम और प्लेस भी चेंज होता है इनडायरेक्ट में जाके. इस चार्ट को यू हैव टू लर्न इट एंड राइट इट इन योर कॉपी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट. ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका टुमारो है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो द नेक्स्ट डे लिखाता है और द फॉलोइंग डे. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट दिस चार्ट. राइट इन योर कॉपी एंड लर्न इट ऑल्सो. यस्टरडे बन जाएगा द डे बिफोर और द प्रीवियस डे.
tonight बन जाएगा that night, today, that day, this, that, these, those, next day, the following day, last week, the previous week, here का there, ago, before, now. डायरेक्ट स्पीच में नाउ जनरली ओमिटेड रहता है, मीन्स रहता नहीं, अगर है कभी भी वो आपको चेंज होके देन हो जाता है. ओके चिल्ड्रन, यू लर्न दिस वन एंड राइट इन योर कॉपी. अब हम लोग देखते हैं कैसे आपको ये टाइम और प्लेस का आया. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, सोहन सेड आई वेंट देयर लास्ट वीक. सी या लास्ट वीक आपका कैसे टाइम और प्लेस आ गया, इजंट इट? टाइम आया. अब आपको ये कैसे हम लोग चेंज करते हैं. लेट्स सी, सोहन सेड दैट ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस वीक. लास्ट वीक चेंज होकर के प्रीवियस वीक हो गया. अब इस सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस आया फिर से हम लोग याद करते हैं. सोहन सेड, सेड आपका पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, सो आपका इनडायरेक्ट स्पीच भी जब बनेगा तो पास्ट में ही बन जाएगा, इजंट इट? सी, सोहन सेड दैट यूज हुआ है यहाँ पर, और आई का ही हो गया है इनडायरेक्ट में. ओके, आई वेंट है तो ही हो गया, और वेंट आपका ऑलरेडी आपका डायरेक्ट स्पीच पास्ट फॉर्म में है, इजंट इट? मीन्स पास्ट में, सिंपल पास्ट में आपका डायरेक्ट स्पीच है. अगर आपका डायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट में रहता है देन इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग चेंज करके पास्ट परफेक्ट कर देते हैं. ये भी बहुत सारा फॉर्मूलाज है टेंस का, that you have to learn one by one, children. Okay, there are so many formulas like active and passive we have done in direct and indirect speech also. हम लोगों को हर simple present, present perfect, present continuous and then past का भी आपको उसी तरह से formulas के साथ है. We will discuss in the next video. अभी थोड़ा सा हम लोग एक summary देख लेते हैं. सी, तो आई वेंट देयर लास्ट वीक का हो गया आई हैड गॉन. मीन्स पास्ट में अगर डायरेक्ट है सिंपल पास्ट तो आपका चेंज होके पास्ट परफेक्ट हो जाता है. मीन्स ही हैड गॉन देयर. लास्ट वीक का चेंज होके द प्रीवियस वीक हो गया. ओके, दिस कम्स इन इनडायरेक्ट. नाउ सेकंड है आपको, शी सेड टू हिम यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय. इस सेंटेंस में बहुत ध्यान दीजिएगा, एक नया चीज हम लोग को मिला. दैट she said to him means said, that is said क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है. हमेशा याद रखिएगा, कोई भी पूछेगा what is a reporting verb means she said or says, all are reporting verbs. Here said to him means said के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हम लोग को दिख रहा है. देन सेड नहीं लिखेंगे. इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग चेंज करेंगे वो चेंज होके आपको टोल्ड हो जाता है. सी हियर हाउ आई हैव रिटन, शी टोल्ड हिम मींस सेड टू को हम लोग चेंज करके टोल्ड लिख देते हैं. शी टोल्ड हिम दैट, दैट आपको कंजंक्शन लगेगा ही. दैट, यू का देखिए ही बन गया, आर का प्रेजेंट है तो पास्ट हो गया. ओके, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट. दैट ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय. बाकी सब सेम है. एंड देन फुल स्टॉप लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा. नाउ थर्ड, आलोक सेड टू मी. अगेन सेड टू मी को हम लोग चेंज करके टोल्ड कर देंगे. आलोक टोल्ड मी दैट योर पेरेंट्स का क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स. वर, आर का सिंपल पास्ट हो गया, वर इन द रूम, फुल स्टॉप. सो दीज आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का छोटा सा एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड हियर. ओके, the introduction of direct and indirect speech. Now in the next video I will discuss with you all the step by step different direct and indirect speech in different tenses. Okay, how we will convert in simple present, present perfect, present continuous and future and past, everything we will discuss there. And उसके बाद हम लोगों का आ जाता है फिर order and command वाला direct and indirect speech. Okay, request, order, command, we will also discuss that one. So this one you write in your copy, children, and that one also, this chart also you have to write and learn it. इसे आप नहीं याद करिएगा, आपका indirect डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा गलत बनेगा. और ही का शी और वो सब भी याद रखिए.
सेड टू का टोल्ड कैसे होता है, ओके। और दिस वन ऑल्सो रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है तो पास नहीं जाएगा, प्रेजेंट ही रहेगा। ये सब यू हैव टू लर्न इट, इतना अभी करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लगा के देखेंगे। ओके चिल्ड्रन, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।